Good morning, everyone. I am Rohit Gupta, working as assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. In applied science, in department applied science, I am teaching in semester 2, computer science and engineering. My subject is probability and I'm teaching the subject probability and statistics. Today's topic, binomial distribution and some examples of binomial distributions and mean and variance of binomial distribution. Sometimes it is also called Bernoulli's distribution. Understood? Now, let's start. One question. First, we will try a question. First question is: a player tosses three coins, 500 rupees. He win 500 rupee if three heads occur. Means एक player है, उसने three coins toss करे. Understood? If he win 500 rupee if all are three head. Understood? 300 rupee if two head occur. 100 rupee if and only if वन हेड अकर. मीन्स एक प्लेयर है जिसमें तीन क्वाइन टॉस किए, एक 500 रुपी विन करेगा जब थ्री हेड अकर करेंगे, 300 विन करेगा जब टू हेड अकर करेंगे, और 100 रुपी विन करेगा व्हेन वन हेड अकर. अंडरस्टूड? ही लॉसेज 1500 रुपी इफ थ्री टेल्स अकर. मीन्स अगर वो 3 टेल आएंगे तो वो 1500 रुपए हारेगा. ठीक है. नाउ सैंपल स्पेस क्या है? इधर हो सकता है इसका तीनों हेड आ जाए, हेड हेड टेल आ जाए, हेड टेल हेड आ जाए, टेल हेड हेड आ जाए, टेल टेल हेड आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए, हेड टेल टेल आ जाए, टेल 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 आ जाए. मीन्स तीनों टेल आ जाए, ये हो सकता है. मीन्स अगर वो उसको हेड का उसको वैल्यू ऑफ गेम बताना है, दैट मीन्स आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री हेड, probability of getting three head, that is how many events are there? Three head का एक ही event होगा, and total events are 8. That means probability of getting three head, that is 1 by 8. Probability of getting two head, okay, two head. Now this one is your favorable event, this is your favorable event, and this one is your favorable event. That means three favorable events and total events are 8. Then answer will be 3 by 8. Probability of getting one head means only this probability means one head. That means either this one or this one or this one. Three favorable event, that means 3 by 8. Probability of zero head, that means only tails occur, only three tails. That means three tail का कितना favorable case है? 1. That means probability of zero head or three tails is equals to 1 by 8. X is a random variable. Understood? Now x is total number of heads occur. X random variable x type का है, that is number of head occurs. Understood? Okay. Now this is your distribution table. This is your x and corresponding probability p of x. If zero head, then zero head का मतलब that is 1 by means zero head उसका मतलब probability कितनी होगी? 1 by 8. 1 by 8. वन हेड की probability 3 by 8. टू हेड की probability 3 by 8. थ्री हेड की probability 1 by 8. नाउ वैल्यू ऑफ गेम इक्वल्स टू, अगर किसी गेम की वैल्यू निकालनी है, दैट मींस गेन माइनस लॉस. मींस अगर आपके पास एक अगर 500 विन करोगे अगर थ्री हेड्स आ गए, 300 विन करोगे इफ वन हेड आ गया, 100 विन करोगे इफ सॉरी टू हेड आ गया तो 300, वन हेड आ गया तो 100 रुपी minus and corresponding probability 3 by 8 minus 1500 losses when one zero head occur, means all are three tails. That means 1 by 8 into 500 plus 300 plus 500 plus 900 plus 300, that is 1700 minus 1500, that means 200 by 8. That means value of game is equals to 25. Note, if game is fair, then value of game is 0 and vice versa. Suppose that अगर गेम फेयर है, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा आपका? वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा? 0 होगा. अंडरस्टूड? जैसे हम जब हम गैम्बलिंग करते हैं, मीन्स जब हम उस पे खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स पे खेलते हैं, दैट इज अ गेम. उसमें क्या होता है कि अगर हमने किसी पे भी
हम बिट लगाते हैं कि दैट इज कि अगर एस आया या समथिंग कुछ भी, तो हम क्या लगाते हैं, अगर 50 लगाया तो 50 के 100 मिलेंगे, अगर मैं जीता तो 50 के 100 और दूसरा जीता तो उसे भी 50 के 100। अंडरस्टूड है। और जैसे लॉटरी सिस्टम और एक और गेम होता है दैट इज कॉल्ड मींस, जब हम कसिनोज में जाते हैं तो कसिनोज में डिफरेंट टाइप का गेम होता है। उसमें क्या होता है, जैसे कसिनोज पे है, उसमें क्या होता है, एक सर्किल होता है, उसमें क्या होता है कि 100 नंबर्स होते हैं उसमें लिखे हुए। अगर एक नंबर पे आप पैसे लगाते हो, दैट मीन्स 1 रुपी का 90 रुपी प्रोवाइड करता है। मगर हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 100। अगर आप सब पे भी एक एक रुपया लगाओ कि आपको जीतना ही है, दैट मीन्स अगर आप सब पे एक रुपया लगाओ, मीन्स 1 पे भी 1, 2 पे भी 1, 3 पे भी 1, 5 पे भी 1, 10 पे 1, मतलब एवरी नंबर पे 1 रुपी लगाओ, तब भी आप क्या करोगे, 10 रुपी हारोगे। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ गेम, इट्स नॉट अ फेयर गेम। अगर गेम फेयर होना है तो वैल्यू ऑफ गेम कितना होगा, 0। अगर गेम फेयर नहीं है तो जो आपको मतलब जैसे कसिनोज में जाते हो तो ऑलवेज जो प्रॉफिट होगा वो कसिनोज का ही होगा, बिकॉज वैल्यू ऑफ गेम जो होगा वो उसमें जितना ज्यादा वैल्यू ऑफ गेम होगा उतना ही ज्यादा कसिनोज या जो गेम प्लेयर हैं, प्लेयर्स नहीं सॉरी, जो गेम खिलाते हैं, मतलब जो अरेंज करते हैं गेम्स को, उनका फायदा है। अगर वैल्यू ऑफ गेम 0 है देन प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल है, तब खिलाने वाले का कोई फायदा नहीं होगा। अंडरस्टूड है। अगर गेम वैल्यू ऑफ गेम की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो जो जैसे कसिनोज के ओनर्स हैं उनका फायदा है। अगर वैल्यू, बिकॉज उसमें देखा होगा कि आपने 100 सर्कल्स होते हैं, 100 में अगर 1 रुपी लगाते हो, 1 रुपी लगाते हो तो आपको 90 रुपी प्रोवाइड करता है। बट अगर आप बताओ 100 पे हैं तो अगर एक एक पे भी रखो तो दैट मीन्स आप 100 जगह पे लगाओगे, 100 का मतलब आप उस पे 10 रुपए आप अपने 10 रुपए आप लॉस कर जाओगे। अंडरस्टूड है। अगर 1 रुपए के 100 रुपए होते हैं तब वैल्यू ऑफ गेम क्या होता, 0। उस केस में कसिनो के जो ओनर थे उनको प्रॉफिट नहीं होता। अंडरस्टूड है। तो ये याद रखना, इट्स अ केस ऑफ प्रोबेबिलिटी कि वैल्यू ऑफ गेम कितना है। अंडरस्टूड। नाउ Bernoulli trial or binomial trial. Understood? An experiment consists of only two events. Bernoulli trial या binomial trial कब लगेगा? When experiment performed and experiment consists of only two events, two possible outcomes. एक क्या होगा, सक्सेस और फेलियर, बीच में कोई नहीं, एक सक्सेस होगा दूसरा फेलियर। हियर इन एक्सपेरिमेंट performed under same condition n times if each trial are independent. The P for success and Q is denoted as 1 minus P failure. If R success out of n trial, then P of R is equals to NCR P के power R Q के power n minus R. Understood? A coin is tossed 6, तो इसका PDF क्या है? That is probability of means R success out of n success में PDF क्या है? NCR P के power R Q के power n minus R. So, experiment. Another question. A coin is tossed 6 times. Calculate the probability of obtaining 4 or more heads. A coin is tossed 6 times. Calculate the probability of obtaining 4 or more heads. Means हमें किसकी probability निकालना है कि obtaining 4 or more heads. That means either 4 head or more than 4. That means 4 head, 5 head, and 6 head. Because I tossed a coin 6 times, then probability of getting head, that is 1 by 2. Probability of getting not getting head, that is Q is equals to 1 minus P is equals to 1 minus 1 by 2 equals to 1 by 2, and Q equals to 1 by 2. How many times I have tossed? That is n equals to 6. How R success from out of n times? That means R equals to 4 success. The probability of 4 success out of 6 times, that means 64 P के power 4 Q के power 6 minus 4. Understood? So 64 1 by 2 के power 4 into 1 by 2 के power 2, that is 6 factorial upon 2 factorial into 4 factorial.
तो 6 फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा 6 into 5, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल by 2 that is 3 5 the 15 into 1 by 2 के पावर 16, 5 head that is 65, 1 by 2 के power 5 into 1 by 2 that is 66, 6 into 1 by 2 की power 6, 66, 1 by 2 की power 6, 4 or more heads, probability of 4 head, probability of 5 head, probability of 6 head. So 15 into 1 by 2 के power 6, 6 into 1 by 2 के power 6 plus 1 by 2 के power 6. That means 1 by 2 के power 6 into 22, that is 11 by 32. Understood? Now, means 4 or more head, that means either 4 head or या तो 4 head, 5 head or 6 head. Understood? Now find the expectation and variance of binomial distribution or by Bernoulli's distribution. So we want to find expectation. Suppose that x is a random variable or x is a discrete random variable. Understood? And x is a discrete random variable. So r success out of n trials. तो उसका पीडीएफ क्या होता है? That is NCR p के power r q के power n minus r. Now we will construct the distribution table. This is your random variable x and corresponding probability p of x. If x की value 1, then NC1 p की power 1 q की power n minus 1. NC2 x की value 2. Sorry, this one is r. r को आप random variable है ना, तो p of x होता है, तो x की value क्या है? r ही है. तो x2, तो NC2 p के power 2 q के power n minus 2. Similarly, for r, NCR p के power r q के power n minus r. We know that expectation of discrete random variable is equals to summation of xi into pi. Now, summation of r, because xi equals to, this is the ith term, so I have taken an rth term, rth term, तो xi की वैल्यू मैंने r पुट कर दी, तो p of r पुट करेंगे, तो p of r का हमने pdf क्या होता है? NCR p की power r and q की power n minus r. Now put that, this is r, NCR p की power r and q की power n minus r. सब जस्ट अ थिंग कि अगर आपके पास ये r नहीं होता तब तो आप इसका समेशन निकाल लेते, तो आपको प्रॉब्लम क्या कर रहा है? r, और r की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 1 to n तक. अंडरस्टूड है? अच्छा आप बताओ, ये r इनटू, बिकॉज हम बाइनोमियल उसमें पेशियन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था, दैट इज r इनटू NCR इज इक्वल्स टू n इनटू n minus 1 CR minus 1. ये होता है, मैंने आपको आपकी क्लास में भी एक बार प्रूफ करके दिखाया था. दैट मींस r into NCR is equals to n into n minus 1 CR minus 1. आप इसको याद रख लो. जैसे अगर NCR में r का मल्टीपल करेंगे तो जो ये n है ना, ये बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? n minus 1 और CR minus 1. अंडरस्टूड है? नाउ पुट द वैल्यू. If I put the value n into n minus 1 CR minus 1 into p के पावर r and q के पावर n minus 1. अच्छा बताओ, ये समीशन किस पे है? r पे. r पे है, दैट मींस अगर मैं ये, तो n तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, देन आउटसाइड द समेशन साइन. If outside the summation sign, then n summation of n minus 1 CR minus 1 p के पावर r q के पावर n minus 1 r. अच्छा बताओ, p के पावर r को क्या लिख सकते हो? p into p के पावर r minus 1. अंडरस्टूड है? तो p यहां ले लो, n summation p n minus 1 CR minus 1 p के पावर r minus 1 and q के पावर n minus r. तो then p कॉमन, then p outside the summation sign, तो np बन जाएगा summation n minus 1 CR minus 1 p के पावर r and q के पावर n minus r. because we know that. अच्छा, अगर बाइनोमियल में क्या था? that is p plus q के पावर n होता है, तो उसको क्या लिखते हो? summation NCR p a के पावर r a plus b के पावर n होता था, तो a के पावर r b के पावर n minus r. सॉरी, दिस वन इज r minus 1 होगा, यहाँ पे ये r minus 1 होगा. अंडरस्टूड है? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? p plus q की वैल्यू क्या होती है? 1, और 1 के पावर n यानी कि 1. इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी? 1. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू np, then it is denoted by, expectation is also denoted by mu, because ये mean भी बोलते हैं, mean, average or expectation. and expectation or mean of binomial distribution or Bernoulli's distribution is equal to np, because we know that NCR equals to NCR p to the power r and q to the power n minus r is equals to 1. मीन्स आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, दैट मीन्स प्रूव दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम और बाइनोमियल
binomial trial is equals to NP. Understood? Okay. Now next one is variance of Bernoulli's trial. Prove that variance of rand x is equals to NPQ. मींस बर्नौली ट्रायल में वेरिएंस जो कि वेरिएंस क्या होता है NPQ के इक्वल होता है. इसका प्रूफ करते हैं. X is a discrete random variable. X is a discrete random variable and probability of R success from out of n trials, that is NCR p के power R q के power n minus R in Bernoulli trial. We know that variance of x is equals to expectation of x square minus expectation of x का whole square. We have to find that because अगर वेरिएंस का फार्मूला पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. अच्छा बताओ वी हैव टू फाइंड, अगर हमारे पास हमें किसकी वैल्यू नहीं, बिकॉज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू तो है मेरे पास, वो क्या है एनपी. मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. देन वी हैव टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. अच्छा अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी हम यहाँ पुट कर देंगे और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू एनपी पुट कर देंगे. देन हम इवैल्यूएट कर लेंगे क्या होगा. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi स्क्वायर इनटू pi. अच्छा xi की जगह हमने क्या रखा था r. अंडरस्टूड है p ऑफ r. अच्छा r स्क्वायर इनटू ncr p के पावर r एंड q के पावर n माइनस r. दिस इज समेशन ऑन r. समेशन किस पे है r पे. r इक्वल्स टू 1 टू n. अंडरस्टूड है. अच्छा बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा r स्क्वायर ncr p के पावर r q के पावर n माइनस r. अच्छा नाउ यू कैन राइट दैट r इंटू r, बिकॉज मुझे r को एलिमिनेट करना होगा तभी इसकी वैल्यू आएगी. तो हमें r को कैसे एलिमिनेट करना है, r को लिख r स्क्वायर को लिख सकते हो r इंटू r ncr p के पावर r q के पावर n माइनस r. बिकॉज वी नो दैट r इंटू ncr इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 cr माइनस r. नाउ पुट द वैल्यू. ओके इफ आई पुट दैट वन देन समेशन r इंटू n इंटू n माइनस 1 cr माइनस 1 p के पावर r q के पावर n minus, this is n minus r, sorry this one is n minus r. Understood? Now n taken outside the summation sign, summation r n minus 1 cr minus 1 and p के power r can be written as p into r minus 1. because ये r जो नीचे होगा ना r minus 1 या r minus 2 p को उतने ही पावर में लाना होगा. Understood? p into r minus 1 q के power n minus 1. Understood? Now p outside the summation sign because ये समेशन किस पे है r पे है, p पे तो है नहीं. दैट मींस p बाहर आ जाएगा, np हो जाएगा. समेशन r इनटू n माइनस 1 cr माइनस 1 p के पावर r माइनस 1 q के पावर n माइनस r. अच्छा ये बताओ नीचे क्या है r माइनस 1, यहाँ पे क्या है r. तो r माइनस 1 बनाना होगा इसे. तो यू कैन मेक r माइनस 1, r को माइनस 1 और प्लस 1 ऐड कर दो तो क्या बनेगा n माइनस 1 cr माइनस 1 p के पावर r माइनस 1 q के पावर n माइनस 1. अच्छा अब ब्रेक कर दो, r माइनस 1 चाहिए और एक 1 के लिए साथ ले जाओ. तो r माइनस 1 n माइनस 1 cr माइनस 1 p के पावर r माइनस 1 q के पावर n माइनस 1 समेशन n माइनस 1 cr माइनस 1 p के पावर r माइनस 1 q के पावर n माइनस 1. और ये जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1. p प्लस q के पावर n माइनस 1 हो जाएगा और n माइनस 1 जब आएगा तो उससे क्या जाएगा. तो अब p प्लस q की वैल्यू 1 होती है तो 1 हो जाएगा. ये हम r माइनस 1 n माइनस 1 cr माइनस 1 p की पावर r माइनस 1 q की पावर n माइनस 1. अब हम जानते हैं बिकॉज वी नो दैट कि r माइनस 1 n माइनस 1 cr माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी n माइनस 1 जो यहाँ पे होगा वो क्या जाएगा बाहर आ जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 2 cr माइनस 2. अच्छा आप बताओ ये np तो बाहर है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n माइनस 1 n माइनस 2 cr माइनस 2 p के पावर r माइनस 1 q के पावर n माइनस r प्लस 1. अंडरस्टूड है. अच्छा एक चीज बताना, दिस इज समेशन ऑन किस पे है r, यानी कि n माइनस 1 तो आउटसाइड द समेशन साइन बाहर सकता है, बाहर ले लिया n माइनस 2 cr माइनस 2 p. अच्छा आप बताओ जितना r माइनस 2 है तो p को भी उतने में ही कन्वर्ट करना होगा क्योंकि q के पावर n माइनस r हो जाएगी. ठीक है बिकॉज p प्लस q के पावर n माइनस 2 हो जाएगा फिर. तो हमने कन्वर्ट कर दिया p इंटू p के पावर r माइनस 2 q इंटू q के पावर r n माइनस r प्लस 1. नाउ n माइनस 1 p भी बाहर आ जाएगा इंटू और इस टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 1. दैट मीन्स आपको क्या होगा np प्लस n माइनस 1 इंटू p प्लस p. अच्छा व्हेन वी सिंप्लीफाइंग दैट इज n माइनस 1 इंटू n प्लस इंटू p स्क्वायर प्लस np. वी नो दैट
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एनपी है। देन वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एन पी का होल स्क्वायर। अच्छा आप बताओ, एन स्क्वायर, एन का जब मल्टीपल करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस एन आ जाएगा इंटू पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, एन स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसिल आउट, देन आंसर क्या आएगा। अच्छा एनपी अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा, वन माइनस पी, because 1 minus p equals to q, then this is equals to npq. Understood? Okay, now variance of x is equals to npq in binomial distribution or Bernoulli distribution. Variance expectation क्या होगी, that is np and variance is npq. आप ये कर लोगे आप, this is an important question in for your examination, because in your examination sometimes they ask find expectation and variance of Bernoulli's trial or binomial trial. तो वो क्या होगा, expectation क्या होगा np and variance क्या होगा npq. Sometimes in your examination they ask to in 2.5 marks what is the expectation and variance of binomial distribution. आपको simply formula लिख देना है और कुछ नहीं. Another one question for application of this one, if the sum of mean and variance of binomial distribution of 5 trial is 9/5, means क्या है 9/5, then find the probability of x greater than equals to 1. means आपको निकालना क्या है कि sum of mean and variance of binomial distribution. अगर binomial distribution है तो उसका mean और variance का sum कितना है 9/5, because binomial distribution में mean कितना होता है np और variance कितना होता है npq. तो np प्लस npq इक्वल टू कितना हुआ 9/5. अंडरस्टूड है, समझ में आया कि नहीं। अच्छा बताओ, अगर np प्लस npq इक्वल टू 9/5 तो n की हाउ मेनी ट्रायल्स आर 5 ट्रायल्स, तो 5p प्लस 5pq इक्वल टू 9/5, तो p प्लस pq इक्वल टू 9/25 कर सकते हैं। अच्छा, बिकॉज वी नो दैट q इक्वल टू 1 माइनस p, तो दिस इज 1 प्लस q, तो q इक्वल टू 1 माइनस p, दिस इज 2 माइनस p equals to 9/25. Okay, now this is p into 2 minus p is equals to 9/25. Now with cross multiplication, so 2p minus p square is equals to 9/25. When we multiplied, so 2p 50p minus 25p square equals to 9. Now take it on another side, that is 25p square minus 50p plus 9 equals to 0. अच्छा आप बताओ, इसको इसका हम p की p इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट कैसे निकालते हैं, रूट निकालने के लिए क्या होता है, दैट मींस फैक्टराइजेशन मेथड. दिस इज 25 into 9 की वैल्यू क्या होगी 225, एंड इफ आई फ्रैक्शनेट इसको 50 को हम तोड़े, दैट इज 45 एंड 5 में, तो 225 हो जाएगा. दैट मींस 25p स्क्वायर माइनस 45p माइनस 5p प्लस 9 इक्वल्स टू 0. 5p टेकन कॉमन तो 5p माइनस 9 माइनस 1 टेकन कॉमन तो 5p माइनस 9 इक्वल्स टू 0. 5p माइनस 9 इंटू 5p माइनस 1 इक्वल्स टू 0. फर्स्ट केस में क्या होगा, 5p माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, दैट मींस p इक्वल्स टू 0, p इक्वल्स टू 9/5. नेक्स्ट केस 5p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट मींस p इक्वल्स टू 1/5. Okay, we take p equals to 1/5. Why we are taking p equals to 1/5? Because probability can never be greater than 1 and p equals to 9/5. So we ignored, because 9/5 की value क्या होगी, that is 1/8 something. That means it's greater than 1. Probability कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती. That means we neglect this value. Okay, then we take p equals to 1/5. Now, what I want to find, that is probability of then probability of x greater or equals to 1. आपको greater or equals to 1 पे निकालना है. That means आपको 1 से बड़े पे निकालना. अगर मैंने 1 माइनस probability of x equal to 0 पे कर दिया, अगर ये होता कि probability x greater than 1, तो 0 और 1 दोनों सब्ट्रैक्ट होते हैं. अगर ये कहा गया कि probability x greater or equals to 1, तो 1 पे भी होगा, 2 पे भी होगा, 3 पे भी होगा, 4 पे भी. तो हम क्या करेंगे, 1 से जो 0 है 1 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 0. अच्छा बताओ, वो कितने से कितने तक है, हाउ मेनी ट्रायल 5c0 इंटू p के पावर 0 हो जाएगा एंड q के पावर 4/5 के पावर 5.
q की पावर 5 एंड q की वैल्यू क्या, p की वैल्यू 1/5 है तो q की वैल्यू 4/5, तो 1 माइनस 4/5 के पावर 5। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालोगे, दैट मींस दैट वैल्यू विल बी 0.6724। Understood? Now another question. Compute the variance of probability distribution of the number of doublets in 4th rows pair of dice. अच्छा, आप कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को? मींस अगर आपके पास क्या है, इफ यू आर टेकन टू डाइसेस, तो टू डाइस आपने लिए हैं, तो हो सकता है व्हाट इज डबलेट्स? डबलेट्स मींस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आया था, आई थिंक एमडीयू के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में 2019 या 2019 में ये आपका क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन अच्छा है। कंप्यूट द वेरिएंस ऑफ एंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स इन 4 थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस। नंबर ऑफ डबलेट्स कितने होंगे? मींस अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो x इज अ रैंडम वेरिएबल, तो अच्छा ये डबलेट्स होंगे, तो x इज द नंबर ऑफ डबलेट्स, तो वी थ्रोइंग टू डाइसेस इन टोटल इवेंट्स कितने होंगे? 36। तो नंबर ऑफ डबलेट्स कितने होंगे? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट्स, तो 1 2 3 4 5 6, that means probability of getting doublets, that is 6 by 36, that is 1 by 6, and probability and not getting doublet, that means 1 minus p, q equals to 1 minus p, that is 5 by 6, q की वैल्यू क्या होगी? 5 by 6। नाउ x इज अ रैंडम वेरिएबल, तो क्या हो सकता है? जीरो डबलेट से गेट करें। अगर मैंने 4 रोज किए तो जीरो डबलेट्स, 1 डबलेट, 2 डबलेट, 3 डबलेट्स, 4 डबलेट्स। अच्छा, डबलेट्स, अब जीरो डबलेट्स की प्रोबेबिलिटी, दैट मींस फॉर हाउ मेनी times I have thrown 4 times. If I throw 4 times, then 4c0 into 1 by 6 की power 0, because 4 I'm getting I throw 2 dices 4 times, that means कितने डबलेट्स चाहिए मुझे? 0 डबलेट्स चाहिए। 4c0 into 1 by 6 की power 0 into 5 by 6 के power 4 minus 0, that means 4, ये 5 by 6 के power 4 आ जाएगा, into second one 1 doublet, that means 4c1 into 5 by 6 sorry 1 by 6 के power 1 and 5 by 6 के power 3, ये हो जाएगा 4 into 5 by 5 cube upon 6 4। Similarly 5 square 6c 4c2 1 by 6 के power 2 5 by 6 के power 2। Similarly 6 4c3 4, तो ये आ जाएगा 4 into 5 upon 6 के power 4, 4c4 तो 1 by 6 के power 4। when अगर x है तो x स्क्वायर निकालोगे, 0 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। अच्छा बताओ एक्स स्क्वायर, अच्छा मुझे क्या निकालना है? वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अच्छा आप बताओ, अगर मुझे वेरिएंस चाहिए, दैट मींस मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना होगा। अच्छा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज समेशन ऑफ xi स्क्वायर इनटू pi। अच्छा, दिस वन इज योर xi, एक्स स्क्वायर है, दिस इज x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, x4 स्क्वायर एंड x5 स्क्वायर। अगर मैंने p का भी मल्टीपल कर दिया तो x स्क्वायर इंटू p ऑफ x मिला, तो 0 इंटू 5 by 6 के पावर 4, दैट इज 0, 1 इंटू 4 इंटू 5 क्यूब, दैट इज 5 क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 125 इंटू 4, दैट इज 125 into 4, that is 500, 500 into 1, that is 500 upon 1296, because 6 के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1296, 6 6 दा 36 into 6 216 into 6, that is 1296। okay, now getting next one, 5 square upon 6 cube, so 5 square 25 upon 6 cube, that is 6 के पावर 4 कर देंगे, that is क्या होगा? 600 upon 1296। then similarly 180 upon 1296, 16 upon 1296, then when summation this one, then 1296 upon 1296, that answer will be 1, and expectation क्या हो जाएगा? x into p of x 0, 500, 364, 864 upon 1296, that is the answer will be 2 by 3। वेरिएंस ऑफ x में जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1 minus 2 by 3 का स्क्वायर, that is 1 minus 4 by 9, then answer will be, जब हम LCM लेंगे तो 9 आएगा, तो 9 minus 4, that is 5 by 9। in today's lecture we have discussed two things. First one, we have discussed the Bernoulli equation, Bernoulli trials, yeah, binomial trials, both are same, and next one
एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ बर्नौली ट्रायल। एक्सपेक्टेशन ऑफ बर्नौली ट्रायल क्या होगा, एक्सपेक्टेशन होगा एनपी एंड वेरिएंस कितना होगा एनपीक्यू। अंडरस्टूड है। देन टू क्वेश्चंस ऑफ देम, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है, और इसको प्लीज सॉल्व कर लेना। अंडरस्टूड है। और प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर आर इक्वल टू 1, और ये वैल्यू ऑफ गेम भी एक बार सॉल्व कर लेना, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ओके, so thank you so much everyone.